السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتہ ہم لوگ جو ہے انما الاعمال بالنیات اس حدیث میں ان الفاظ کی شرح ہم سن رہے تھے، انما اور اس کی کچھ مثالیں، اس کے بعد حصر کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے الاعمال، النیات، ہجرہ اور یصیبھا، ان الفاظ کے معنی کو ہم نے مختصر جانا۔ آج جو ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس سے آدمی کو اپنی عادتوں کو عبادات میں بدل لینا چاہیے۔ عادتوں سے عبادات کی تمیز ہونا چاہیے۔ مثلا ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک ہی جیسا ہوتا ہے، صرف نیت کی فرق سے وہ چیز یا تو عادت بنتی ہے، یا تو وہ علاج ہوتا ہے، یا تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ فرق صرف نیت کا ہے، کیفیت وہی ہے، طریقہ وہی ہے، کام وہی ہے۔ اس کی بہت سارے مثالیں ہیں، آپ جانتے ہیں، پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے کہ ایک شخص صام عن الاکل من طلوع الفجر الى غروب الشمس فی رمضان بنیۃ، ایک آدمی جو ہے رمضان میں فجر سے غروب تک جو ہے کھانے پینے سے باز رہا، بنیۃ، نیت کے ساتھ۔ وآخر صام یوم الاثنین، وآخر صام یوم الاثنین تطوعا، اور دوسرا جو ہے یہی کام کیا، فجر سے لے کر غروب تک کھانے پینے سے رکا رہا نفلی طور پر۔ وآخر نصحہ الطبیب بالصوم لمرض عنده، اور ایک آدمی جو ہے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکا رہا علاج کے طور پر، ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے۔ تو گویا تینوں کا کام ایک ہی ہے، عمل وہی ہے، کیفیت وہی ہے، لیکن فالاول صام فرضا، پہلا آدمی کا جو ہے اس کا روزہ ہوگا اور وہ فرض روزہ ہوگا، والثانی سنتاً، اور دوسرا آدمی کا نفلی روزہ ہوگا، والثالث للطبیب والتداوی وليس للعبادہ، اور تیسرا آدمی جو ہے اس کا بھوکا پیسہ رہنا وہ عبادت نہیں ہے، وہ تو جو ہے علاج ہے، ڈاکٹر کے مشورے پر رکھا ہے۔ فالذی میز لنا بین ہؤلاء النیہ، تو ان تینوں کے درمیان تمیز جو ہوتی ہے وہ صرف نیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مثالیں ہیں کہ ایک آدمی جو ہے مسجد میں رکنے کی ضرورت پڑی تو 2-4 گھنٹے اس کو رکنا پڑا، تو وہ ایسے ہی رک گیا مسجد میں بغیر نیت کے۔ اور دوسرا آدمی جو ہے اتنا ہی وقت رکا نیت کے ساتھ میں، تو پہلا والا جو ہے وہ تو ایسے ہی رکا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، دوسرے والا جو ہے جو رکا ہے وہ عبادت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نیت کی فرق کی وجہ سے، یا تو وہ عادت بنتی ہے یا تو وہ عبادت بنتی ہے۔ تو لہذا ہم جو ہے ہمارے ہر کام کو عبادت میں تبدیل کرنا ہے،
तो वो नीयत का फर्क है। इन्नल जज़ाअ बिहसबि निय्या, अमल का जो जज़ा है वो नीयत के हिसाब से ही है। उस पर एक हदीस देखिए, बुखारी मुस्लिम ही में है, क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी को उसकी जज़ा उतनी ही है जितनी कि उसने नीयत की है। ऐ मन नवल खैरा उजरा अलैहि, जिसने खैर की नीयत किया वो माजूर होगा उस पर, सवाउन अमिलहु अम लम यअमलहु, चाहे वो उस पर अमल करे या अमल ना करे। यानी एक आदमी खैर करने की सिर्फ नीयत किया है, सिर्फ नीयत करने पर उसको अजर मिलेगा, अमिलहु औ लम यअमल, अगरचे कि वो उस पर अमल ना किया। वमन नवश्शर्रा, और जिसने शर की नीयत किया, फ़इन लम यनफ़ज़हु उजरा अलैहि, सिर्फ शर की नीयत किया और उस शर के काम पर अमल नहीं किया तो उसको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। व इन नफ़ज़हु उक़िब बिही, और अगर वो शर की नीयत करने के बाद उस पर अमल भी किया तो सज़ा मिलेगी। बिदलील क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ व जल्ल, हदीस क़ुदसी में है कि इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यिआत, अल्लाह ताला ने हसनात को और सय्यिआत को लिख दिया है। सुम्मा बय्यन ज़ालिका, फिर उसको बयान किया है कि फमन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा, कोई आदमी जो है नेकी का इरादा किया और उस पर अमल नहीं किया, कतबहल्लाहु लहु इंदहु हसनतन कामिलतन, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसके मीज़ान में एक नेकी लिख देता है। वो सिर्फ इरादा किया है, अभी अमल नहीं किया, सिर्फ इरादा करने पर नेकी का अल्लाह उसको नेकी लिख देता है, मुकम्मल नेकी। फ़इन हुआ हम्म बिहा फ़अमिलहा, और अगर उसने जो इरादा किया नेकी का उस पर अमल भी किया, कतबहल्लाहु लहु इंदहु अशर हसनातिन इला सबइमिया ज़िअफिन इला अज़आफ़िन कसीरा, तो अगर वो नेकी का इरादा करने के बाद अमल भी करता है तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियां या उससे भी कई गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको अजर अता फरमाते हैं, नेकियां अता फरमाते हैं। वमन हम्म बिसय्यतिन, और जो आदमी बुराई का इरादा किया, गुनाह का इरादा किया, फलम यअमलहा, और उस बुरे इरादे पर अमल नहीं किया, कतबहल्लाहु लहु इंदहु हसनतन कामिलतन, गुनाह का इरादा करने के बाद गुनाह नहीं किया तो अल्लाह ताला उसको मुकम्मल नेकी अता करेगा। फ़इन हुआ हम्म बिहा फ़अमिलहा, अगर बुराई का इरादा करने के बाद अमल भी कर दिया, कतबहल्लाहु लहु सय्यअतन वाहिदतन, तो एक ही गुनाह अल्लाह लिखेगा। तो इस हदीस से मालूम होता है कि नीयत के हिसाब से अमल की जो है सवाब है, जज़ा है वगैरह मिलेगी। तो इतनी अहमियत है नीयत की। अब देखिए अब्दुर्रहमान बिन अल महदी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 190 पर 5 हिजरी, ये इमाम मालिक के शागिर्द हैं। ये कहते हैं लौ सन्नफ़्तु किताबन फिल अबवाबी लजअल्तु हदीस उमर इब्न अल खत्ताब फिल अअमाल बिन्नियात फी कुल्ली बाबिन, अगर मैं कई अबवाब पर मुश्तमिल कोई किताब लिखूंगा तो हर बाब के शुरू में इन्नमल आमालु बिन्नियत वाली हदीस मैं जरूर रखूंगा। यानी ये इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस नियत के पर जो हदीस है इसकी अहमियत बताते हुए फरमाते हैं कि अगर मैं कई अबवाब पर मुश्तमिल एक किताब लिखूंगा तो इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस हर बाब के शुरू में लिखूंगा। यहया बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 129 व क़ीला 132, ये सिगार ताबईन में से हैं, फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं, लेकिन हाफिज़ इब्न हजर ने इनको मुदल्लिस कहा है। तअल्लमु निय्या फ़इन्नहा अबलगु मिनल अमल, पहले नियतों की इस्लाह करो, पहले नियतों को सिखाओ,
क्योंकि वो अमल से ज़्यादा अहम है। अमल से पहले नीयत को सिखाओ क्योंकि नीयत अमल से ज़्यादा अहम है। यह कौल है यहया बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह का। अब आइए इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ला यनफ़उ क़ौलुन इल्ला बिअमलिन, कोई भी कौल है ना अमल के बगैर नफ़ा देने वाला नहीं है। बात अमल के बगैर नफ़ा देने वाला नहीं है। खुद कुरान में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो वला ला यनफ़उ क़ौलुन इल्ला बिअमल, अमल के बगैर कौल का कोई फ़ायदा नहीं है। वला यनफ़उ क़ौलुन व अमलुन इल्ला बिनिय्या, कौल भी और अमल का भी फ़ायदा नहीं है। ना कौल फ़ायदा दे सकता है और ना ही अमल फ़ायदा दे सकता है, इल्ला बिनिय्या, मगर नीयत के साथ में। वला यनफ़उ क़ौलुन व अमलुन व निय्यतुन, कौल भी नफ़ा नहीं देगा, अमल भी नफ़ा नहीं देगा, नीयत भी नफ़ा नहीं देगा, इल्ला बिमा वाफ़क़ सुन्ना, जब तक कि वो काम सुन्नत के मुवाफिक ना हो। इस रिवायत को भाई कि ये जो है तीन अखवाल में इन्नमल अमालु बिन्नियत के तहत तीन अखवाल लाया हूँ, अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमहुल्लाह का, यहया बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह का और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का। अब यहाँ पर जो है हम इन्नमल अमालु बिन्नियत इस हदीस की तशरीह को ख़त्म करते हैं। अहले इल्म और तलबा को ये जान लेना चाहिए कि हुसूल इल्म में नीयत और खुलूस कितनी अहमियत के हामिल है। अगर तलब इल्म से मुराद डिग्रियों का हुसूल, दुनियावी जाह व हशमत और मनासिब का हुसूल है, तो ऐसा इल्म इंसान के लिए वबाल जान है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युबतगा बिही वजहुल्लाही ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अरदम मिन दुनिया लम यजिद अरफल जन्नह यौमल क़ियामह यानी रिहहा। जो आदमी इल्म सीखता है जिसका मतलूब अल्लाह की रज़ा होना चाहिए था, उसके बजाय वो दुनियावी गर्व के लिए या दुनिया के मफाद के लिए अगर वो इल्म सीखता है, लम यजिद अरफल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पहुँच सकता। वल्इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हमको हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी नियतों की इस्लाह फरमाए। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी सही में 7 जगह लाए हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात 7 जगह है। किताब बदइल वही जो पढ़े हम लोग, किताबुल ईमान बाब मा जा इन्नल अमाल बिन्निया, उसमें है। नंबर 3 किताबुल इत्क़ बाबुल ख़त्ल व निस्यान में है। नंबर 4 किताब मनाक़िबिल अंसार बाबु हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। नंबर 5 किताबुल निकाह। नंबर 6 किताबुल ऐमान व नुज़ूर। नंबर 7 किताब हिय्या। इन 7 जगह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को अपने बुखारी में लाए हैं और सब जगह अलग अलग सनद है। इसीलिए मुहद्दिसीन जो है इसको एक हदीस नहीं बल्कि 7 हदीस कहते हैं। और ये हदीस बुखारी के अलावा इमाम मुस्लिम ने अपने सही में और इमाम नसाई ने अपने सुनन में भी इस हदीस को लाए हैं। ये इस हदीस की तखरीज है, तखरीजुल हदीस। फिक़्हुल हदीस, ये हदीस जो है खबर वाहिद है। अब खबर वाहिद जो है आप लोग जानते होंगे कि जो है हदीस जो है उसूल हदीस में खबर जो ये है आप लोग जानते हो कि मशहूर है, हदीस मुतवातिर है, आहाद है वगैरह। तो ये हदीस जो है खबर वाहिद है। खबर वाहिद से मुराद जो है इस बारे में जो है
कुछ लोग खबर वाहिद जन का फ़ायदा देती है या इल्म यकीन का फ़ायदा देती है, इस बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है। और खबर वाहिद इबादत में हुज्जत है या हुज्जत नहीं है, तो इस बारे में जो है सही बात क्या है, हम बात थोड़ा आगे बताएंगे। खबर वाहिद पहले किसको कहते हैं आप लोग जान लीजिए। हदीस या तो मुतवातिर होती है या तो आहाद होती है। अगर आहाद है तो फिर उसकी किस्में है, मशहूर है, अजीज है, गरीब है वगैरह। मुतवातिर आप जानते होंगे कि मुतवातिर हदीस वो है कि जिसके हर तबके के रावी बहुत ज्यादा हो, कसरत से हो हर तबके में। और खबर वाहिद क्या है, देखिए आप, हादल हदीस लम यरवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला उमर बिन खत्ताब। इस हदीस को सहाबा में से सिर्फ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत किए हैं। उमर बिन खत्ताब के अलावा किसी और सहाबी से यह हदीस मरवी नहीं है। तो गोया सहाबा के तबका में उमर बिन खत्ताब अकेले हैं। वलम यरवी अन उमर बिन खत्ताब इल्ला अलखमा बिन वक्कास अल-लैसी। तो अलखमा बिन वक्कास लैसी के तबके में उमर बिन खत्ताब से ये अकेले इस हदीस को रिवायत करते हैं, इनके अलावा दूसरे नहीं। और अलखमा से सिर्फ मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी रिवायत करते हैं, दूसरे नहीं। और मोहम्मद बिन इब्राहिम से सिर्फ यहया बिन सईद रिवायत करते हैं और दूसरे नहीं। और यहया के बाद इस हदीस को 200 से ज्यादा लोग रिवायत करते हैं। यानी यहया बिन सईद से इस हदीस को 200 से ज्यादा लोग रिवायत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो 3 रावी गुजरे हैं उनसे सिर्फ एक रावी ने इस हदीस को रिवायत किया है। तो लिहाजा फल हदीस मिनल आहाद, ऐसे हदीस को आहाद कहते हैं। अब देखिए कि ये मुतवातिर की मिसाल मैं दिया हूँ आपको, ये मुतवासिर की मिसाल है। ये हदीस जो मशहूर है ना, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर झूठ बांधे जानबूझकर तो उसका ठिकाना जहन्नम है। ये हदीस मुतवातिर है। क्यों? ये हदीस जो है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से रिवायत करते हैं। अबू सईद खुदरी के अलावा बहुत सारे सहाबा इसको रिवायत किए हैं। अशरा मुबशरा, अबू बकर, उमर बिन खत्ताब और अबू हुरैरा, बहुत सारे सहाबा ने इस हदीस को अल्लाह के नबी से बयान किए हैं। और अबू सईद खुदरी से अबू नज़रा से के अलावा भी बहुत सारे लोग इस हदीस को रिवायत किए हैं। हर तबके में बेशुमार लोग जो रिवायत करते हैं तो वो हदीस मुतवातिर है। तो बहरहाल एक मिसाल है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस जो है खबर वाहिद है। इस सही हदीस और दीगर दलाइल से ये बात साबित है कि हदीस मकबूल के लिए मुतवातिर या मशहूर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खबर वाहिद भी हुज्जत है। ये सबसे ज़्यादा सही कौल है, खबर वाहिद हुज्जत है। अगर खबर वाहिद को हुज्जत नहीं मानेंगे तो हमारे दीन का अक्सर हिस्सा खत्म हो जाता है। नंबर 3, अमल की मकबूलियत का दारो मदार नियत पर है। लिहाजा वुजू, गुस्ल, नमाज, रोज़ा, हज और तमाम इबादत के लिए नियत का होना ज़रूरी है और उसी पर फुक़हा का इज्मा है। सिवाय इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के, उनके नज़दीक वज़ू और गुस्ल जनाबत में नियत वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा के पास है। इस किस्म के बेशुमार अजीब व गरीब मसाइल हमको फ़िक़्ह हनफ़ी में नजर आते हैं। नंबर 4, अरबी लुगत जुबान में दिली इरादे, अज़्म और क़सद को नियत कहते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नियत दिल के इरादे और क़सद को कहते हैं। क़सद व इरादे का मकाम दिल है, जुबान नहीं। यानी नमाज की नियत जुबान से कहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम और ताबईन रहमहुमुल्लाह में से किसी से साबित नहीं है। तो गोया नियत जुबान से नहीं बल्कि दिल में है। नंबर 5, किसी अमल के इंद अल्लाह मकबूल होने की 3 शर्तें हैं। आमिल का अकीदा
کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق ہونا، عمل اور طریقہ کار عین کتاب و سنت کے مطابق ہونا، اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دینا، یہ 3 شرطیں ہوں تو عمل اللہ کے پاس مقبول ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 6، بعض علماء اس حدیث کو دین اسلام کا ثلث، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث جو ہے دین کا ثلث 1/3 ہے، کیونکہ تمام اعمال کا تعلق دل سے ہے یا زبان سے ہے یا جوارح سے ہے، چونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے تو لہذا یہ اسلام کا ثلث 1/3 ہوا۔ نمبر 7، یہ حدیث ان بدعتیوں کا رد ہے جیسے مرجیہ، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان دلی اعتقاد کے بغیر صرف زبانی قول کا نام ہے۔ یعنی بعض فرقوں میں سے ایک گمراہ فرقہ یہ بھی ہے جیسے مرجیہ وغیرہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے بولنا کافی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے گمراہ فرقے کا رد ہے یہ حدیث۔ علامہ عینی فرماتے ہیں فیہ رد علی المرجئہ فی قولہم الایمان اقرار باللسان دون الاعتقاد بالقلب، اس میں مرجئہ فرقے کا رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس فرقے کا رد ہے یہ حدیث۔ نمبر 8، صحیح بخاری میں انما الاعمال بالنیات والی پہلی روایت میں فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، یہ الفاظ نہیں ہے۔ اب ہم جو حدیث جو پڑھے انما الاعمال بالنیات حدیث بخاری کی پہلی حدیث، اس میں یہ جملہ نہیں ہے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 54 اور مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو ان سے 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں، یعنی بخاری کی ایک حدیث میں یہ ان الفاظ کا ہونا، ایک حدیث میں ان کا الفاظ کا نہ ہونا، اس سے 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ اول، ایک روایت میں ذکر ہو، دوسری میں عدم ذکر ہو، تو عدم ذکر نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ دوم، ثقہ راوی کی زیادت، جب ثقہ راویوں یا اوثق کے ہر لحاظ سے خلاف نہ ہو تو یہ زیادت معتبر و مقبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، بعض علماء نے امام بخاری کے طرز عمل سے استنباط کیا ہے کہ انہوں نے کتاب بدء الوحی کے شروع میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث ذکر کر کے 2 مسئلے ثابت کیے ہیں۔ اول، حدیث بھی وحی ہے، دوم، امام الحمیدی المکی سے روایت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دین اسلام اور نزول وحی کی ابتدا مکہ سے ہوئی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی آخری حدیث ابو ہریرہ البدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں اشارہ ہے کہ دین اسلام مدینے میں مکمل ہو گیا۔ اب آئیے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، فقہ الحدیث کے تحت میں 9 نکات آپ کو بیان کیا ہوں۔ اور ایک چیز ہے جو میں یہاں پہ پاور پوائنٹ میں وہ نہیں ہے، میں مس ہو گیا ہے، ورود الحدیث۔ ورود الحدیث، وو را وو دال، ورود حدیث کیا ہے؟ جیسے قرآنی آیات کا جو اسباب نزول ہوتے ہیں، سبب نزول، جیسے قد سمع اللہ قول التی، اس کا سبب نزول ہے، انا اعطینا سبب نزول ہے، قل هو اللہ احد سبب نزول ہے، بے شمار آیتوں کا سبب نزول ہے، ہر آیت کا سبب نزول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو وارد ہوئے ہیں، اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ورود حدیث۔ یہ حدیث کیوں وارد ہوئی ہے؟ تو اس حدیث کے ورود میں جو قصہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، قصہ صحیح ہے لیکن ورود حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے ام قیس کا قصہ۔ ام قیس رضی اللہ عنہا جب وہ ہجرت کیے تو
उनको निकाह करने के लिए एक आदमी हिजरत किया, निकाह की गरज से हिजरत किया। उम्मे खैस रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह करने के लिए एक शख्स हिजरत किए मक्का से मदीना, और वो मदीने में इतना मशहूर हो गए कि उनको लोग कहते थे मुहाजिर उम्मे कैसिन, उम्मे कैस के मुहाजिर। तो किस्सा ये सही है, उम्मे कैस रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्का से मदीना हिजरत किए और उनसे निकाह करने के लिए एक शख्स जो है हिजरत किए और वो मुसलमान हुए और जो है उनसे शादी भी की। तो इस वजह से इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस अल्लाह के नबी बताए, ये गलत है, ये ज़ईफ है, ये रिवायत ज़ईफ है। यानी उम्मे खैस का हिजरत करना ये किस्सा सही है और उनको निकाह करने के लिए एक आदमी का मक्का से मदीना हिजरत करना ये किस्सा भी सही है, लेकिन इस किस्से की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। अब आइए बाब और हदीस में क्या मुनासबत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अमलों के दारो मदार नियत पर है। इस हदीस को किताबुल वही में इसलिए जिक्र फरमाया कि बुखारी शरीफ पढ़ने वाला अपनी नियत को दुरुस्त कर ले, क्योंकि अहादीस मुबारका भी वही हुआ करती हैं। लिहाजा तालिब हक बुखारी की तिलावत से कबल अपनी नियत को खालिज कर ले ताकि इल्म नबूवत उसके कल्ब पर जाके असर हो और जिंदगी में इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा हो। और जो है नंबर 3 देखिए, किताबुल वही में इन्नमल अमल बिन्नियात की हदीस को दर्ज करने की गरज यह है कि तमाम अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह का इल्म ये सब कुछ वही के जरिए दिया गया है। चुनांचे मज़कूरा हदीस का ताल्लुक बात के साथ यही है कि इस्लाम में हर रुकन का ताल्लुक वही के साथ है, लाजिम व मलजूम है, क्योंकि वही ही के जरिए तमाम अमालों की तालीम दी गई है। लिहाजा यही से बात के साथ हदीस की मुनासबत है। अब आइए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्नमल आमालु बिन्नियात बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। इन्नमल आमालु बिन्नियात अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ख़त्म किया है, सुना है उसके मुख्तसर शरह के साथ। अब आइए कुछ बातें आप लोगों को बताना मैं चाहता हूँ, तो ये है हम लोग जो है तकरीबन पिछले 6 या 7 हफ्तों से हदीस की अहमियत और बुखारी शरीफ की खुसूसियत पढ़े और बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़े इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये हदीस जिस तर्ज से हम लोग या जिस उसलूब से जिस ढंग से हम पढ़े हैं, आने वाले अहादीस वैसा हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अगर वैसा पढ़ेंगे तो हर हफ्ता हम एक ही हदीस पढ़ पाएंगे। जैसे कि हमने बाब, उसकी वजाहत, किताब और उसकी वजाहत, हर रावी के बारे में मुख्तसर जो है तारुफ, फिर उसके बाद जो है अल्फाज की लग़वी शरह, फिर उसकी इस्तिलाही शरह, इस तरीके से अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हम फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, इल्मी फ़ायदा होगा, नहवी फ़ायदा होगा और बलागी फ़ायदा होगा और जो है बहुत सारी चीज़ फ़ायदा होगा, लेकिन अहादीस हम कम पढ़ते जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा से हम ऐसा पढ़ेंगे कि एक बाब को एक दिन में ख़त्म कर देंगे, एक हदीस पढ़ेंगे और बक़िया हदीसों का खुलासा पेश कर देंगे। और जहाँ पर ज़रूरी है बाज़ मुश्किल या मखसूस अल्फाज की वदाहत करना, तो वहाँ पर जो है उस लफ्ज़ की हम वदाहत करेंगे। और जहाँ पर ज़रूरी है किसी रावी के बारे में बयान करना, जैसे बुखारी में मुदल्लिस रावी है या नहीं है, बुखारी में मुदल्लिस रावी है या नहीं है, क्योंकि जिस रिवायत में मुदल्लिस रावी होता है तो वो रिवायत ज़ईफ़ होती है, इल्ला के बाद शुरूत पाए जाएँ तो ज़ईफ़ नहीं होती। तो बुखारी शरीफ में मुदल्लिस रिवायत है नहीं है, मुदल्लिस रावी है, तो ऐसे मौके पर जो है हम बता देंगे कि रावी मुदल्लिस है या मुदल्लिस नहीं है वगैरह वगैरह।
तो इंशाअल्लाह हम कहना ये चाहते हैं कि आइंदा से हम हर बाब की एक हदीस को पढ़कर बकिया हदीसों का मुकम्मल खुलासा हम बयान कर देंगे। इस पहले बाब में तकरीबन 7 हदीसें हैं, तो हम एक हदीस पढ़े हैं, तो आइंदा हफ्ते में जो है हम बकिया 6 हदीसों का मुकम्मल खुलासा और मुख्तसर तशरीह और उस पर और उससे मुस्तबित मसाइल इंशाअल्लाह हम पढ़ने की जानने की कोशिश करेंगे। अब आइए कि कुछ लोगों ने सवाल किया था ग्रुप में, जैसे जब मैं दावत के हवाले से कुछ मुख्तसर क्या होता है, जैसे मुख्तसर सही बुखारी, तो इन दो का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा कि दावत के हवाले से मैंने जो कहा था कि दावत के हम माने में कई अल्फाज कुरान में आए हैं, जैसे इंजार है, तबशीर है, नसीहत है, अमर बिल मारूफ नही मुनकर है, वसीयत है, हिकमत है। तो मालूम कैसा होना, तो असल में जो है क्या है, दावत का माना क्या, इस्तिलाही माना या शरई माना, लफ्जी माना नहीं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना या अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना, उदउ इला सबीली रब्बिक, तो ये दावत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जहन्नम से डराते थे, इंजार। तो इंजार का सबब क्या है, ताकि लोग डर कर अल्लाह की तरफ पलटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खुशखबरी देते थे, तबशीर। तो तबशीर क्यों, लोग अल्लाह की तरफ पलटे। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये काम क्यों अंजाम देना, लोग अल्लाह की तरफ पलटे। तो इस हवाले से दावत के हम माने में कई अल्फाज आए हैं। अब रहा मुख्तसर, एक सही बुखारी है, आप देखे होंगे, मुख्तसर सही बुखारी भी आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले मुख्तसर किसको कहते हैं और मूजिज किसको कहते हैं हम जान लेना, उसके बाद आपको अच्छा समझ में आया था। एक है मुख्तसर और एक है मूजस या मूजिस। इसको अगर मज़दर में बोलेंगे तो इख्तिसार, ईजाज। हम लोग जो है ये ईजाज और इख्तिसार ये लफ्ज आमतौर पर इम्तिहानात के सवालात में रहते हैं। बड़ी जमातों में अगर सवालात अगर अरबी में हो तो अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया बिल ईजाज ऐसा बोल के आएगा। ये ईजाज ये लफ्ज जो है आप इल्म बलागत में पढ़े रहेंगे। मालेगांव और मंसूरा बेंगलुरु में जो लोग पढ़े हैं वो अल बलागतुल वाजिहा और दुरूसुल बलागा, इसमें ये लोग आप पढ़े होंगे, क्योंकि जो ईजाज जो है उसमें आता है। ईजाज कहते हैं तालीफुल कलिमी बि अल्फाजिन कलीलतिन व मआनिन कसीरा, कम अल्फाज ज्यादा मानी से कलाम को बनाना। कलाम की तालीफ यानी ऐसे जुमले या ऐसी तकरीर, ऐसे अल्फाज जो कम हो उसके मानी ज्यादा हो, इसको कहते हैं ईजाज। यानी ईजाज जी जवामिउल कलीम, यानी कलाम को ही बनाया जाए कम अल्फाज से जिसमें मानी ज्यादा हो। इख्तिसार किसको बोलते हैं, मौजूदा कलाम को इख्तिसार करना। कलाम ऑलरेडी है, चाहे वो खुद का हो या दूसरों का हो। उसकी मिसाल है अर्रहीकुल मख्तूम। मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी अर्रहीकुल मख्तूम किताब लिखे, वो मुफस्सल है, लेकिन उसी किताब को उन्होंने फिर इख्तिसार किया। जी तजल्लियात, जी तजल्लियात। तो तजल्लियात जो है वो अर्रहीकुल मख्तूम का मुख्तसर है। यानी मुख्तसर कहते हैं मौजूदा मुफस्सल कलाम को, जरूरत जो अल्फाज की जरूरत नहीं है उन अल्फाज को निकाल दिया जाए। तो मौजूदा कलाम को मुख्तसर करना उसको मुख्तसर कहते हैं। मुख्तसर बयान करना उसको ईजाज कहते हैं। दो फर्क है, समझ में आ गया। तो अब मुख्तसर सही बुखारी क्या है, सही बुखारी में जो है एक हदीस कभी कभी जो है 10 बार आती है, कभी 7 बार आती है, कभी 15-15 बार आती है। तो उन मुकर्रर अहादीस को निकाल के
اور باب اور حدیث کے بیچ میں جو ترجمۃ الباب میں جو آیات آتے ہیں، اقوال آتے ہیں، معلق روایت آتے ہیں، ان کو نکال کے اور سندوں کو حذف کر دے کے صرف ان ابی ہریرہ سے حدیث شروع کر دیے، ان ابی ہریرہ، ان عمر بن خطاب، اس طریقے سے وہ جمع کر کے ترتیب دے کے جو اتباعات کیے ہیں اس کو کہتے ہیں مختصر صحیح بخاری۔ تو الحمدللہ ہم کچھ سوالات کا جواب دیتے آج تک جو ہم نے پڑھا، جی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم جو ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں وحی سے متعلق بے شمار آیتیں ہیں، لیکن آیت نمبر سورہ نساء کی 163 آیتیں کیوں لائے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی، یہی آیت لانے کا مقصد کیا تھا امام بخاری کا؟ بالکل ماشاءاللہ صحیح بولے آپ کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پہلے پیغمبر نے، جی تو اس لیے جو ہے اس آیت کو لائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حمد سے کیوں اپنی کتاب کو شروع نہیں کیے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، کوئی ایک دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ صحیح بولے آپ، لیکن اللہ ماشاءاللہ بخاری شریف کی جو اہمیت کے بارے میں یہ قول پیش کرو، جو میں کہ بہت ساری کا قول پیش کیا تھا، ابن تیمیہ کا، خطیب بغدادی کا، اور جو ہے امام نسائی کا، کوئی بھی ایک بخاری شریف کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ صحیح بخاری میں ضعیف حدیث ہے تو تجھے طلاق، تو طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ تو الحمدللہ آج اتنا کو ختم کریں گے، انشاءاللہ جو ہے آئندہ سے جو ہے ہم کسی اور طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم ہر ہفتے ایک باب مکمل ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔